Very good morning to all of you. So, in the last class of class 11th in business studies, we were studying the chapter 10 of your business studies, that is international business. So, in the last class, we were completing the topic, that is international business versus domestic business. Okay, so what are the basic difference between the domestic and international business? So why both business or that is international as well as domestic business, how they can vary from each other, and what are the benefits of the when the we go through the international business. So what are the different basic difference, and whatever the benefit we get from the international business, and what are the different benefits we get from the domestic business. Okay, so in this we have discussed the there are different areas where we can discriminate between the domestic business and the international business. Okay, so the basically the areas are the nationality of the buyer and the sellers. So in which we have discussed that the from which nations they belong. So in the domestic business, both are from the same nations, or they have same nationality, as well as in the international business both are from the different nations. Okay, and next one is nationalities of the other stakeholders. So other in the other stakeholders there are employees, suppliers, shareholder, general public, etc., who interact in the business firm. So in the case of domestic business, all are belong from the same country or the one country, and they have also shared the common language. They have their same culture as well as values, behavioral pattern. But when we discuss in the case of international business, so they all stakeholders are different from the each other. Okay, because they belong to the different countries, because here we are talking about the international business. So many of the countries are interacted or the contracted with the each other, and they can do the different trade services. So in the mobility of the factor of production, so more and more factor of production are mobile in the case of domestic, as when we compare it to the international business. And in the case of customer heterogeneity across the market, so there is also dependence due to socio-culture variation or the differences. They are also differ in their taste, preference, fashions, language. So in India we can discriminate both these people, because in India the all the patterns as well as the taste and preference are differ from the other countries. So such variation it become the complicated to design the product. Okay, ऐसे सारे variations हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बहुत complicated हो जाता है to design the product for the international business. Okay, क्योंकि हमें किसी और कंट्री के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में पूरी नॉलेज रखनी होती है. अभी जब अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में है तो हमें पता होता है कि यहाँ के जो पीपल हैं उनको किस टाइप के प्रोडक्ट्स हमें उनको ज़्यादा पसंद होंगे. बट in the case of international business there is heterogeneity, means they are not identical. Their taste and preference, their fashions, their language are differ from the each other countries. Okay, next one is difference in the business system. Okay, there is also difference in the business system to how they are do their business. It is also depend on the others countries also, because if any individual want to do the international trade, they have to adapt their production process, their human resources, market plans according to the international market. Because here any individual, any businessman is going through the people, they are belong to the other countries, their taste, their preferences, their fashion and the language. So they have to adopt or they adapt all the conditions, all the production activity which is of the international people. Okay, so next one is political system and the risk. So in the case of the political system as well as the risk, we have discussed that the political factors or the political
thoughts or the ideology of the people is different in the case of domestic industries or in the international business. Okay, so they have to, if any individual want to do the international business, so the trade need to make special effort to understand the political environment of the other countries when any individual want to do export as well as do import with the other country. Okay, so business regulation and the policy. So every country had their own rules and regulations, their set of laws, as well as different thoughts, tariff and taxation policy. These all are the different from the each other. Okay, कि हर एक कंट्री की अपनी टैक्सेशन पॉलिसी होती है, टैरिफ की पॉलिसी होती है. टैरिफ मीन्स कि द टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन दी इम्पोर्टेड गुड्स. तो जो भी ये सारी पॉलिसीज़ है, दे ऑल आर द differ. So in this case, any individual have to understand the rules and regulation and their taxation policy when any supplier or the firm want to do the international business. Okay, they have to think much more about the international business. कि उन्हें क्या है, अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ से ज़्यादा उन्हें इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, वहाँ पे लोगों की जो रेगुलेशंस है, जो वहाँ की पॉलिसीज़ है, जो वहाँ के टेस्ट हैं, फैशंस है, लैंग्वेज है, दीज ऑल आर दी डिफरेंट टू दी डोमेस्टिक इंडस्ट्री. तो वहाँ हमें जैसा प्रोडक्शन करना है, हमें उस कंडीशन पे क्या करना पड़ेगा, उनके ही सारे चीज़ को अडाप्ट करना पड़ेगा, तभी वो बिजनेसमैन will become the more successful. Okay, next one is currency used in the business transaction. So another difference between the domestic and the international businesses, in when we go through the domestic business, so all the currencies are the same. Okay, when we trade the goods from the one state to another state, we will exchange those goods in the same currency. Okay. But when we go through the international business, so the currency of the different countries are different. So there is also chances when the rate of exchange, when the exchange rate is done, when the currency is exchanging with the other country, so there is also chance of the fluctuating the money भी क्या होता है, fluctuation होता है. So it is due to this fluctuation, it has become difficult for the any firm to fix their प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड दी सर्विसेज. क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इसकी वजह से कोई भी फर्म के लिए एक प्राइस फिक्स करना अपने प्रोडक्ट और दी सर्विसेज के को फिक्स करना बहुत इम्पॉसिबल और इट बिकम्स टू मच डिफ़िकल्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट दी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ व्हाई वी नीड फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस की नीड क्यों है, क्यों हम प्रेफर करें कि इंटरनेशनल बिजनेस होना चाहिए. तो फर्स्ट वन इज़ व्हेन वी गो थ्रू द बेनिफिट टू द नेशन. ओके, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, द बेनिफिट टू द नेशन एंड द बेनिफिट टू द फर्म. कि नेशन को क्या बेनिफिट हो रहा है जब इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, और फर्म्स को क्या बेनिफिट हो रहा है जब हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस को प्रेफर कर रहे हैं. सो व्हेन वी गो थ्रू द बेनिफिट टू द नेशन, कि नेशन को बेनिफिट क्या हो रहा है, तो फर्स्ट वन इज़ अर्निंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. अर्निंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि अगर हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, हेल्प कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करेंगे. मतलब कि अगर हम अपने गुड्स को क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ भी अबंडेंट प्रोडक्ट है, हमने क्या किया, उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया. अब हमें पता है कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी पेमेंट मेड होता है, जो भी हम रिसीव करते हैं, वो किस में होता है, फॉरेन करेंसी में होता है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट का, तो हमें क्या होगा, जो भी पेमेंट मिलेगा वो किस में होगा, फॉरेन करेंसी में होगा. सो वी विल सेव ऑल दीज फॉरेन करेंसी, हम उन फॉरेन करेंसी को सेव कर लेंगे. एंड व्हेन वी नीड टू इम्पोर्ट द गुड्स, हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द अदर कंट्री, इन दैट केस वी विल यूज़ दैट फॉरेन करेंसी जो हमने एक्सपोर्ट के थ्रू अर्न किया था. ओके, सो इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प अ कंट्री to earn foreign exchange
विच कैन बी यूज टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, कि अगर हम लोग को कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट करना है, कैपिटल गुड्स मीन दोज गुड विच आर यूज फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन ऑफ दी एनी कमोडिटी, कि कोई भी अगर हमको कमोडिटी का फर्दर प्रोडक्शन करना है, मीन्स और प्रोडक्शन करना है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स को उनको ही कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है, अगर हमको कैपिटल गुड्स अदर कंट्री से इम्पोर्ट किया और हमने जो भी एक्सचेंज किया मींस एक्सपोर्ट किया था, हमें अर्निंग होगी। हम कुछ अगर गुड्स को किसी को बाहर सोल्ड आउट करेंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगा नहीं, तो जो भी अर्निंग हमें हुई हम उसको क्या कर लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे फॉर दी इम्पोर्टिंग दी कैपिटल गुड्स, कि हम अगर अदर कंट्री से क्या करते हैं, गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम दी अदर कंट्री, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। फिर हम उसी फॉरेन करेंसी को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम टेक्नोलॉजी डिफरेंट कंट्री से लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किए, फर्टिलाइज़र्स को इंपोर्ट किए, जो भी हम इंपोर्ट करेंगे उनका हमें जो भी पेमेंट करना पड़ेगा तो हम उन फॉरेन करेंसी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या कह रहा है कि हर एक एवरी कंट्री हैज़ सम नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स हर एक कंट्री क्या होती है, एक कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से उसमें वो एडवांटेजियस होती, मीन्स उसको उसमें एडवांटेज होता है कि कुछ कंट्री में क्या है, मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ कंट्री में लेबर रिसोर्सेज होते हैं, कुछ कंट्री में क्या है, वो लोग एडवांटेज होते हैं कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, किसी के पास वाटर रिसोर्सेज है, किसी के पास लेबर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो हर एक कंट्री क्या है, किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होती है। ओके, सो एवरी कंट्री every country tries to use their these resources in the best possible manner। हर एक कंट्री क्या करती है, उन गुड्स को ट्राई करती है यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज को इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड ग्रेजुअली दे बिकम मोर एफिशिएंट एंड स्पेशलाइज्ड इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज अदर देन द कंट्री। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हर एक कंट्री उन रिसोर्सेज को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड हो जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल जापान में प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मोर एफिशिएंटली देन द इंडिया, कि जो जापान है वो क्या कर रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो मोर एफिशिएंटली उसका वो प्रोडक्शन कर सकता है। और इंडिया क्या है, इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या है, जापान के कंपैरेटिवली ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर दिया। इंडिया ने क्या किया, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, किसको एक्सपोर्ट कर दिया, जापान को। अब जापान के पास जापान को किसकी नीड थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की नीड थी, तो उन्होंने उसको क्या कर लिया, परचेस कर लिया। अब जापान क्या करेगा, जापान ने को उसके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस होता है और इंडिया क्या नहीं हो रहा है, तो इंडिया क्या करेगी, उन गुड्स को इम्पोर्ट कर लेगी जापान से। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो कोई भी कंट्री स्पेशलाइज्ड थी किसी भी डिफरेंट वो जो प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट रिसोर्सेज में, दे कैन एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। अगर इंटरनेशनल बिजनेस नहीं होता तो यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं कर पाते, बट इंटरनेशनल बिजनेस की होने की वजह से दे कैन एक्सचेंज दी प्रोडक्ट ईजिली। ठीक है, तो सो विथ एक्सटर्नल ट्रेड से रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, एंड ऑल दी कंट्रीज़ गेट बेनिफिट ऑफ दी स्पेशलाइजेशन। हर एक कंट्री क्या है, उस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट को अर्न कर रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड दी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो भी एक्सटर्नल ट्रेड होता है वो क्या बूस्ट करता है। अगर हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सिंपली अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल, तो इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। कैसे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, आप ये सोचो कि अगर हम कोई गुड्स से, कोई कंट्री से हम गुड्स मंगा रहे हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि, या अगर हम इंपोर्ट करें और एज वेल एज हम एक्सपोर्ट करें, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कंट्री का ग्रोथ होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बताइए, कोई है ऐसा ऑप्शन या कोई है ऐसा एग्ज़ाम्पल। देखिए, इसमें क्या होता है कि कंपनी जो भी, अगर ग्रोथ कैसे होगा एक्सटर्नल ट्रेड से, अगर जैसे हमारे यहाँ क्या है, हम कोई भी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है, मतलब हमारे यहाँ अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स
प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हम अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। उस कंडीशन में अगर हमें पता चला कि हमारे यहाँ जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, गुड ए या गुड बी हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या है कि अदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, 4 to 5 अदर कंट्री हैं जो फॉरेन कंट्रीज़, वो लोग क्या हैं, इन ए और बी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज नहीं है, तो वो क्या करेंगी, वो इन दोनों प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगी। इंपोर्ट कहाँ से करेंगी? इंडिया से करेंगी, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया ए और बी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है। अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया को ए और बी दोनों प्रोडक्ट को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है इन दी 5 कंट्रीज़, 5 फॉरेन कंट्रीज़ में इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। अब इंडिया क्या करेगी, अब इंडिया को इसके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया कि अब इसको प्रोड्यूस करना है, 5 कंट्रीज़ के लिए उसको एक्सपोर्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा यूनिट हो गई, उसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। इस कंडीशन पे क्या करेगी इंडिया, डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी करना है, प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करेगी, जो भी लेबर्स हैं उनको हायर करेगी कि नहीं करेगी? कौन प्रोड्यूस करेगा? वर्कर्स है, वही तो प्रोड्यूस करेंगे ना उनको, तो वर्कर्स को वो क्या करेगी, हायर करेगी, काम देगी। इससे क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, पहला कंडीशन, अगर वो उनको काम दे रही है तो क्या मिला, जितने भी लेबर्स हैं जो अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, नाउ दे आर एम्प्लॉयड, वो सबसे पहले क्या हो गए, एम्प्लॉयड हो गए। एम्प्लॉयड होने के बाद ही उनको क्या हो गया कि अब जैसे ही वो एम्प्लॉयड हुए, उनको क्या हुआ, उनके पास इनकम आई, पैसा मिलेगा उनको, वेजेस मिलेगा उनको, सैलरीज़ मिलेगा। जैसी वेजेस और सैलरीज़ मिली, अब उनकी डिमांड क्या हो गई, कोई भी प्रोडक्ट, पहले उनके पास खाने को भी नहीं था, अब क्या है, इनके पास अगर पैसा आएगा तो वो क्या डिमांड करेंगे कि उनकी जो फैमिली है उनका क्या हो जाए, 2 टाइम का उनको फूड मिल जाए। फिर वो धीरे धीरे क्या सोचेगा कि प्रॉपर उसको घर मिल जाए, फिर वो क्या सोचेगा कि उसको क्लोथ्स मिल जाएं, शेल्टर मिल जाए। तो ये सारी क्या है, उस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से इनकम हुई, इनकम जनरेट हो रही है, तो क्या हो रहा है कि सिंपली इनकम जनरेट हो रही है, मतलब हमारी जो कंट्री की इनकम है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ही कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, डैट मीन्स जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब अब ये क्या हो गया, सोचिए, एक्सटर्नल ट्रेड्स के होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो गया, एज वेल एज कंट्री का ग्रोथ भी हो गया, ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल ट्रेड। सो ये नेशन के लिए क्या, एक्सटर्नल ट्रेड बहुत बेनिफिशियल भी होता है। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जैसे ही लोगों के पास जैसे इंटरनेशनल ट्रेड अगर नहीं था तो लोग क्या कर रहे थे, कोई भी फॉरेन की गुड्स को परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। अगर हमारे यहाँ एग्जांपल देख लो कि अगर हमारे यहाँ कंट्री में कोई भी फॉरेन गुड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अब ये क्या होगा कि हम लोग वी आर नॉट एबल टू परचेज़ दी दोज कमोडिटी ऑफ दी अदर कंट्री, हम उन गुड्स को परचेज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंट्री में वो इम्पोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। अब क्या होगा कि इसके साथ ही क्या होगा कि हम लोग उन कमोडिटी को परचेज़ नहीं कर पाएंगे, तो द पीपल लिविंग इन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब अगर इंटरनेशनल बिजनेस होगा तो क्या है, जो भी डेवलपिंग कंट्री के और अंडर डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उन गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं, एज वेल एज दे कैन इंक्रीज दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक ये इसका पर्सपेक्टिव हो गया। एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो गया इसका कि जैसे ही हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई ओनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, लोगों की इनकम हुई, इनकम होने के साथ ही साथ लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो इंक्रीज़ हो जाएगी। बिकॉज अभी तक क्या था कि नंबर ऑफ़ पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड ही नहीं थे, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर सकते थे। अब क्या है कि उनकी इनकम इंक्रीज़ हो गई, इनकम इंक्रीज़ होने से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो सिंपल। तो उसी की वजह से क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होता है ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द नेशन की ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, की इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से ये सारे बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, नेशंस को हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द फर्म। तो अब कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो फर्म्स को मिलेंगे, ठीक है।
फर्म्स को भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी फर्म क्या है लॉस के लिए करेगी। तो व्हाट आर द डिफरेंट? सो फर्स्ट वन इज prospect for the higher profit. Generally, international business is more profitable than the domestic business. ठीक है, ये क्या है, हायर प्रॉफिट भी प्रोस्पेक्ट करता है, मीन्स जनरेट करता है। इसमें ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो मोर प्रॉफिटेबल होता है देन द डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा बिजनेस होता है? इंटरनेशनल बिजनेस होता है। व्हेन द प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट आर लो, देन फर्म कैन सेल these product at high price in the international market in the countries where price are the high। देखिए इतना सिंपल है कि इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉफिटेबल प्रॉफिट की कंडीशन, प्रॉफिट ज़्यादा होने की चांसेस है एज कंपेरिजन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अगर किसी भी जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्या है, इंडिया में डिमांड कम हो गई, ठीक है, इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, उस प्रोडक्ट का मार्केट लो हो गया। अब उस प्रोडक्ट को कोई परचेज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि अब क्या है कि हमारी डिमांड ही नहीं है। इस कंडीशन पे क्या कर सकते हैं, जो भी फर्म्स हैं, डिफरेंट सप्लायर है, वो क्या कर सकते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को जहाँ पे उस प्रोडक्ट की नीड है, जैसे कोई भी किसी भी कंट्री में उसकी नीड है, वो क्या कर सकते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे किसी और कंट्री में सोल्ड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे तो कर नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे उसकी डिमांड नहीं है, तो वो क्या कर देंगे, उन सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड है और जहाँ पे उनको उसका प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इससे क्या हो गया, हायर प्रॉफिट जनरेट हो गया। जहाँ पे इनको इंडिया में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, अब वहाँ पे उनको उसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ये क्या है कि ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, डोमेस्टिक मार्केट में, अगर डोमेस्टिक मार्केट लो है, यहाँ पे लोग कंज्यूमर्स उन गुड्स को क्या कर रहे हैं, परचेज़ नहीं कर रहे हैं, या परचेज़ कर भी रहे हैं तो उसकी प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो डिमांड उस हिसाब से नहीं है। तो सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गई, तो सप्लाई प्राइस उसकी बहुत कम हो गई है। प्राइस कम होने का मतलब है कि प्रॉफिट किसी भी सप्लायर को नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उस कमोडिटी की प्राइस को हाई करके दूसरे किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देगा। सो फ्रॉम देयर ही विल अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट क्या करेगा, वहाँ पे वो ज़्यादा अर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ओके, कि कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, तो कंपनीज इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल ट्रेड increase their production capacity। With increase in the production capacity, these firms can get benefit of the large production or the economies of scale and reduce the cost of the production। मतलब कि कंपनीज जो भी इन्वॉल्व होती है एक्सटर्नल ट्रेड में, ठीक है, दे आर डिफरेंट कंट्रीज हु आर इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल ट्रेड, इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। वो अपनी जो भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी कैपेसिटी को दे कैन इंक्रीज, उसको वो इंक्रीज़ कर सकती हैं। विथ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी दीज फर्म कैन गेट बेनिफिट। ठीक है, अब जैसे ही उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगी तो उनका क्या है, बेनिफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा लार्ज प्रोडक्शन का। वो क्या करेंगे, जैसी प्रोडक्शन का बेनिफिट इंक्रीज़ होगा तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करने लगेंगे। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मीन्स वो उन प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, मतलब जो कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा व्हेन दे इंक्रीज़ देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल ट्रेड में इंगेज हैं उनका क्या है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस करके क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा, फिर जैसी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा सो इट विल फर्म कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द लार्ज प्रोडक्शन लार्ज होगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी क्या होगा, कंपनीज उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सो इट विल रिड्यूस। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। सो व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्ट बिकमिंग saturated in the domestic country, then the firm can enhance their business by approaching international market. So this is the main motivation for MNCs, means multinational companies at developed countries to enter in the market for the developing country।
इस कंडीशन पे क्या होगा, जब ये कंट्रीज़ देखेंगी कि जो भी उनके डिमांड है उनके प्रोडक्ट का, कोई भी इंडिया की अगर कंट्री है, सॉरी इंडिया का कोई प्रोडक्ट है, तो वो इंडिया का जो कोई डिमांड, अगर वो कोई भी बिजनेसमैन है और कंपनी है वो देख रही है कि यहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम है, तो वो क्या करेगी, वो अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट को क्या करेगी, डिफरेंट कंपनीज़ को क्या करेगी, इंटरनेशनल बिज़नेस की ओर अपना अप्रोच करेगी। ठीक है, अब उसको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, वो क्या करेगी, वो अपने बेनिफिट को इंक्रीज़ करने के लिए इंटरनेशनल बिज़नेस की ओर क्या करेगी, अप्रोच करेगी। एंड दिस इज़ द मेन मोटिवेशन फॉर मैनी MNCs। ठीक है, यही मेन मोटिवेशन होता है जो डिफरेंट MNCs जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो डेवलप्ड कंट्री में एंटर होती है टू एंटर इन दी मार्केट फॉर दी डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, वही सारी जो डेवलप्ड कंट्री की वो होती हैं MNCs होती है, वो कहाँ एंटर करती है, डेवलपिंग कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे उनकी नीड क्या है, डेवलपिंग कंट्री में उनकी ज़्यादा नीड है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री तो वो ऑलरेडी डेवलप है। ठीक है, उनकी वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, तो वो क्या सोचते हैं कि हम वहाँ पे अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करें जहाँ पे इसकी डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वे आउट फ्रॉम इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। सो हाई कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक market drives from the many companies to go international in search of the market for their product. This help them to grow and expand. Okay, जो भी हाई कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है, वो क्या करती है, जो भी डोमेस्टिक मार्केट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ड्राइव्स मैनी कंपनीज टू गो इंटरनेशनल। ठीक है, वो क्या करती है, वो उनको ड्राइव करती मीन्स पुश करती है कि मैनी कंपनीज़ को कि वो इंटरनेशनली जाएं इन सर्च ऑफ मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट, कि वो अपने मार्केट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए वो न्यू मार्केट को सर्च करें। दिस हेल्प देम टू ग्रो एंड एक्सपेंड। यही क्या करता है, हेल्प करता है टू ग्रो एंड एक्सपेंड, कि बिज़नेस को अगर ग्रो और एक्सपेंड करना है इन दैट कंडीशन, so they can expand and grow. So high competitive domestic market drives many companies। जो भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट कंपनीज़ को क्या करते हैं, पुश करते हैं। ये कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट की ओर जाओ और अपने प्रोडक्ट और अपने मार्केट के लिए, जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके लिए फ़ॉरेन में जाके मार्केट सर्च करो। ऐसे क्या होगा कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में तो वो अपने को इंस्टेब्लिश कर ही चुकी हैं, वहाँ पे उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा ही है, और इंटरनेशनली भी उनके प्रोडक्ट की क्या होगी, वो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा, कोई भी बिज़नेस, कोई भी फर्म क्या करेगा, अपने बिज़नेस को बहुत एक्सपैंड करेगा एज़ वेल एज़ हेल्प टू ग्रो। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो ग्रो भी करेगा। फिर एक कंट्री से अब उसको लगेगा कि यहाँ पे मेरा मार्केट बहुत एक्सपैंड हो गया है, देन they established their new company or the in other country। फिर वो क्या करेगा, अदर कंट्री में इंस्टेब्लिश करेगा। ऐसे ही वो पूरे मार्केट में क्या कर देगा, पूरा रीच कर देगा। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव बिजनेस विजन। सो द विजन टू बिकम इंटरनेशनल कम्स फ्रॉम द अर्ज टू ग्रो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इम्प्रूव क्या है कि बिज़नेस के विजन को, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो जो भी विज़न है इंटरनेशनल का, टू विज़न टू बिकम इंटरनेशनल, इट इज़ बेसिकली कम्स टू ग्रो। मतलब ये क्यों हो रहा है कि हम क्यों ये प्रेफर करें इंटरनेशनली बिज़नेस, कुछ तो प्रॉफिट होगा तभी तो कोई भी फर्म और कोई भी नेशन इसको प्रेफर कर रही है। बेसिकली टू ग्रो एंड एक्सपैंड देयर बिजनेस, उनको अपने बिजनेस को क्या करना है, ग्रो करना है एज वेल एज एक्सपैंड करना है। सो कंपनीज गेट स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवांटेजेस बाई गोइंग इंटरनेशनल। कंपनी क्या करती हैं, बहुत स्ट्रैटेजी, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अदर इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू लेकर आती हैं कि हम कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे टेक्निकल एडवांटेज ले सकते हैं डिफरेंट कंट्री से, कैसे हम अपने मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, ये सारी स्ट्रैटेजी क्या है, इंटरनेशनल मार्केट से लेकर आती हैं, एंड मैनी कंपनीज़ आर इंक्लूडिंग इट एज देयर मेन ऑब्जेक्टिव एंड
स्ट्रैटेजी। ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो इसमें बेसिकली क्यों कर रही हैं, देयर मेन उनका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है, वो इंटरनेशनल बिजनेस इसीलिए करना चाह रहे हैं कि वो वहाँ से डिफरेंट न्यू थिंग्स को क्या करें, सर्च करें और लर्न करके आएँ। अभी क्या है, आपको क्या है कि आप डिफरेंट एरिया में जाके कुछ नई इन्फॉर्मेशन लोग कैटर करते हैं, गेन करते हैं, तो वैसे ही जो डिफरेंट बिजनेस है वो इंटरनेशनल मार्केट को इसलिए भी सर्च करता है कि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी को, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को, डिफरेंट इक्विपमेंट को दूसरे कंट्री से लेकर आए, जिससे वो उससे कुछ लर्न करे, एज वेल एज़ वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड भी कर सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव में लेकर आ सकता है कि वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही हो टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड टू एक्सपैंड एंड द ग्रोथ ऑफ